Once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics. So, in the last class, I have discussed about the fluid dynamics, and in fluid dynamics, I have discussed the what is the Newton's equation of motion, and then what is Reynolds equation, Navier-Stokes equation, and Euler's equation. And after that, I have discussed the what is the Euler's equation in a given streamlines, and we have seen the for steady flow, the equation of Euler's equation, and then I have derived the Bernoulli's equation in three different terms: the Bernoulli's equation per unit weight, Bernoulli's equation per unit mass, and Bernoulli's equation per unit volume. Then I have discussed the what is the stagnation pressure or what is the stagnation velocity, expression of the stagnation velocity, and then how to apply the Bernoulli's theorem in the pipe flow. So today I will discuss the problems based on these Bernoulli's theorem, and the problems I have taken from the civil services exam and the previous year AKU exam. So let us take the quick recaps what we have discussed in the last class. So firstly, I have discussed the what is the various forces that acting on these fluids in the fluid dynamics. So if I Newton's equation of motion, firstly I have become what is Newton's equation of motion. So if all the forces is taken into account, like gravity force plus pressure force plus viscous force plus compressibility force plus turbulence force plus minor force like surface tension, that is equal to m into a, then such type of equation is called Newton's equation of motion. Similarly, second theory I have discussed, second equation I have discussed, that is what is Reynolds equation. So Reynolds equation, if the compressibility force and the minor force like surface tension is neglected, then such type of equation is called Reynolds equation. So if I talk about the Reynolds equation, we can write Reynolds equation can be written as, so firstly I have written the so Newton's equation of motion I have written Newton's equation of motion. If I take all the force, gravity force plus pressure force plus viscous force plus compressibility force plus turbulence force plus surface tension force, that is equal to m into a. So this is called Newton's equation of motion. Similarly, in Reynolds equation, so in Reynolds equation generally we neglect the value of this compressibility force and surface tension force. So if I write gravity force plus pressure force plus viscous force plus turbulence force, that is equal to m into a. So this equation is called Reynolds equation of motion. Similarly, if in this equation, once again, if I ignore this turbulence force, then, or we can see that in Navier-Stokes equation only we consider the gravity force, pressure force, and viscous force, then such type of equation is called Navier-Stokes equation. So this is Navier-Stokes equation, and if I only consider the gravity force and pressure force, then such type of
equation of motion is called Euler's equation. So gravity force plus pressure force, that is equal to mass into acceleration. So this equation is called Euler's equation of motion. After that, I have discussed the Euler's equation. Euler's equation along a streamline, and I have derived the equation that is dP plus rho into ds p del v by del s plus del v by del t plus rho into g into dz, that is equal to 0. So this is the Euler's equation along the Euler's equation of motion. Euler's equation of motion along a streamline. If flow is steady, if flow is steady, if flow is steady, so if flow is steady, so it will be dP by rho plus p into dv plus rho into g into dz, that is equal to 0. Euler's equation of motion, Euler's equation of motion for a steady flow. And after that, just I have integrated this equation for incompressible flow. So for incompressible flow, of course it is steady also. So that if I just integrate this equation, so we have the p by rho plus p square by 2 plus gamma into z is equal to 0. So this is the Bernoulli equation per unit mass. So this is the Bernoulli equation per unit mass. Another form we have also written like Bernoulli equation per unit weight. So Bernoulli equation per unit weight, that is Bernoulli equation per unit weight, that is p by gamma plus v square by 2g plus z is equal to constant. So this is the Bernoulli equation per unit, where p by gamma is the pressure head, v square by 2g is the velocity head, or we can say that static head or kinetic head. Kinetic head or dynamic head, and z is the datum head or potential head. We can also write the Bernoulli equation per unit volume. So Bernoulli equation per unit volume. What will be the Bernoulli equation per unit volume? So P plus, if I multiply by gamma, so what will be this value? If I multiply by the gamma, so V square by 2g into gamma plus gamma into z is equal to constant. So we can write P plus rho into g, so it will be rho V square by 2 plus gamma into z is equal to constant. And after that, I have discussed the what is stagnation pressure. So stagnation pressure is the sum of static pressure plus dynamic pressure. So dynamic pressure is rho V square by 2 is the dynamic pressure. And if I compute the value of stagnation velocities, just we have to simplify this and we can compute the stagnation velocity. As I told you, the stagnation point is a point where our local velocity will be 0. So this is all about what we have discussed in the last class. So now I am going to apply the question on these concepts. So let us take the first problem that is asked in GATE 2001. In a Bernoulli equation used in a pipe flow, each term represents. Tell me the answer. A option is energy per unit weight, energy per unit mass, energy per unit volume, and energy per unit flow. पर यूनिट वेट से हाँ, मैंने बताया था कि बर्नौली पाइप फ्लो में जो है बर्नौली इक्वेशन हमेशा जो लगाएंगे. सो इन पाइप फ्लो
we generally we apply the Bernoulli equation per unit weight. So what is the Bernoulli equation per unit weight? That is P by gamma plus V square by 2G plus Z is equal to constant. So this is the Bernoulli equation per unit. The equation Gz plus B square by 2 plus dP by rho is constant along a streamline holds true for. ये कौन सा इक्वेशन है? पहले बताइए कौन सा इक्वेशन है ये? The equation Gz plus B square by 2 plus dP by rho that is equal to constant. So this is Bernoulli. Euler's equation. That is the Euler's equation. Euler's equation किसके लिए है? तो यहाँ पे हमने अभी भी रो को हमने क्या है बाहर नहीं किया, इसका मतलब कि फ्लो अभी भी कंप्रेसिबल ही है। अगर कंप्रेसिबल रहता तो फ्लो अगर कंप्रेसिबल रहता तो रो को हम लोग आउटसाइड कर देते, तो यहाँ पे फ्लो जो है वो कंप्रेसिबल है। तो कौन कौन सा हो गया हमारा? तो फ्रिक्शनलेस है ही है, इस फ्लो जो स्टेडी है तब तो ये आया है। अगर फ्लो स्टेडी नहीं रहता तो किस तरह लिखते? अभी हमने दिखाया है कि डायरेक्टली अगर हमने इफ आई राइट द आइलर्स इक्वेशन अलोंग द मोशन, दिस इज फॉर द स्टेडी फ्लो। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें और थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ देखिए दिस इज द आइलर्स इक्वेशन अलोंग से स्ट्रीम लाइन, लेकिन स्टेडी फ्लो ले लिया गया है तब तो ये वाला फ्लो क्या हो गया, जो डेल वी बाई डेल टी है वो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट्स व्हाई द इक्वेशन विल रिड्यूस टू दिस टर्म। So the option I think the steady frictionless and compressible flow, because if it will be incompressible, so rho can be outside from the integral. So A option is correct, steady frictionless and compressible flow. So this question is asked in GATE 1996. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, third question I have taken from GATE exam 2009. At 2.1 and 2 in a pipeline, the velocity are V and 2V. Two sections are considered. Let us assume the and both the points are at the same elevation. So let us take the मैंने कुछ इस तरह अगर points को लिया है, points जो हमने कुछ इस तरह लिया है, let us take this is our datum line. मान लो कि ये हमारा datum line है, and two points. Let us assume this is the first point and this is the second point. इसको हमने बोला 1, this is 1 and this is 2. And दोनों का जो datum से जो same elevation पे है, तो हमने मान लिया कि this is also point A, point 1 is also at a depth of Z from the datum. This is, let us assume this is the datum. तो datum से हमने point 1 को Z depth पे लिया है और 2 को भी at a depth Z पे हमने लिया है, ठीक है? Because according to the question, both the points are the same elevation. The fluid density is rho. The flow can be assumed to be incompressible, inviscid, steady and irrotational. सारा का मतलब पता चल रहा है। incompressible मतलब क्या? रो की वैल्यू कांस्टेंट। inviscid फ्लो क्या बोला था मैंने कि इनविसिड फ्लो में क्या होगा, हमारा विस्कस शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी, आइदर ड्यू टू द जीरो वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट और d theta by dt. Flow is steady and irrotational. So we can apply these, all are the assumptions must be satisfied, so we can apply the Bernoulli equation. So according to Bernoulli equation, if I apply the Bernoulli equation at 1 and 2 हमने यहाँ पे इस दोनों सेक्शन पे लगाया, तो क्या लिख सकता हूं मैं? P1 by gamma plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by gamma plus P2 square by 2 plus Z2. Okay, so यहाँ से जो है क्या है हमारा कि we have to find what difference in pressure. So we can write P1 minus P2 by gamma, because Z1 and Z2 is constant. Z1 and Z2 is constant, so this will be cancelled because the elevation of both the points are same from the datum. So P1 minus P2 by gamma can be written as V2 square minus V1 square divided by 2G, and velocity at 2 points is given. That is the velocity at point 2 is 2V and the velocity at point 1 is V. So we can write 2V square means 4V square minus V square divided by 2G. So it will be 3V square by 2G. So gamma, if I write P1 minus P2 divided by rho into G, so it will be 1.5 into V square by G. So G cancel. So we can write P1 minus P2 is equal to 1.5 V square into rho. So if I see the option, so B option is correct. The difference in pressure P1 and P2 at points 1 and 2 is 1.5
rho v square. Fourth question, that is once again from the gate. A body moving through a still water at 6 meter per second produces a water velocity of 4 meter per second at a point. This is the different another point that is 1 meter ahead. So let us take the 2 points. One point, let us assume this is the first point and this is the second point, and that the distance between these 2 points is 1 meter. Okay, so a body is moving still water. यहाँ का जो velocity है, let us assume this point is once again 1 and this is 2. और फिर से हमने क्या बोला कि this is, मैंने datum मान लिया, this is our datum, and the difference in pressure between the nose and the point 1 meter ahead would be. So what will be the difference? So once again you have to apply the Bernoulli equation at section 1.1 and 2.2. So what will be the value? So once again, if I apply the Bernoulli equation, so P1 by gamma plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by gamma plus V2 square by 2G plus Z2. Here it is not mentioned that these 2 points at the same elevation, but if I take the another elevation, so we cannot solve. So I have assumed that these 2 points at the same elevation. Okay, so यहाँ भी z distance पे है, यहाँ पे भी z distance पे है. So we have to find the once again the difference in pressure. So difference in pressure, what will be the difference in pressure? So velocity is given. The velocity at point 1 is 6 meter per second and at point 2 is 4 meter per second. So we can write, we can once again this cancel. So we can write P1 minus P2 by gamma is equal to P2 square minus V1 square by 2G. So what will be the value of V2? V2 is 4 meter square. So 14 minus 4 square minus 6 square divided by 2 into G. Once again G cancel. So we can write P1 minus P2 is equal to rho into it will be 16 minus 36. So what will be the value of 16 minus 36? So minus 20. So minus 20 into 1000. Density of water is 1000. So what is the value? Minus 20,000 Newton per meter square. So see the answer. Oh, sorry, here it is 2 is also there. V square by 2 bhi hai na, so we have by 2. This is also by 2, so minus. So the difference in pressure is 10,000 Newton per meter square. So B option is correct. Here the B option is correct. Fifth question, that is taken from the civil services exam. Consider Euler's equation for one-dimensional horizontal unsteady flow. The flow is unsteady. In a 20 centimeter horizontal pipe, water discharge increases from 25 to 100 liters per second in 3 seconds. What is the pressure gradient? Means what is the pressure gradient? Means the pressure difference between 2 points divided by the distance between. अगर यहाँ पे अगर बोला जाता कि what is the pressure gradient, अगर इस क्वेश्चन में मैं बोलता कि what is the pressure gradient, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता प्रेशर ग्रेडियंट? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 1 मीटर. दोनों के डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 मीटर है. सो व्हाट विल बी द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन 1 and 2? सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस या डेल्टा एक्स. सो minus 10,000 or 10,000 Newton per meter square divided by 1 meter, that will be the pressure gradient. So in the next question we have to find the pressure gradient that can sustain the flow. So firstly we have to write the what is the Euler's equation of one dimensional flow. So if I write the Euler's equation, general Euler's equation along streamline. तो क्या हमने लिखा था Euler's equation बताइए? dp plus rho into ds v into dv by ds या del v by del s plus del v by del t plus rho into g into dz, and that is equal to 0. So for one dimensional flow and it is a horizontal flow, so आपका जो है ये वाला कंपोनेंट होगा क्या? del v by del s तो कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया ही नहीं हुआ है, तो ये वाला तो 0 हो गया ऑलरेडी. तो क्या हो जाए? और अनस्टेडी फ्लो है तो ये del v by del t हमारा 0 नहीं होगा. सो वी कैन राइट फॉर वन डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल फ्लो, फॉर वन डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल फ्लो, so we can write dp plus rho into ds into del v by del t plus rho into g into dz, that is equal to 0. अब यहाँ पे एक ही पॉइंट जो दिया गया है तो वहां पे हमारा क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो है, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो पे क्या z की वैल्यू भी तो 0 हो गई ना.
बोलिए। तो ये वाला भी वैल्यू हमारा 0 हो गया। सो इक्वेशन टर्न्स टू डेल पी प्लस रो इंटू डी एस इंटू डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं अगर लिख दूं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, तो हमने ds से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, dp बाई ds प्लस रो इंटू डेल वी बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट dp बाई ds प्लस रो बाई a डेल q बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी नो दैट q इज इक्वल टू av। तो हमने v से डिवाइड किया और a से डिवाइड किया और a से मल्टीप्लाई किया, तो हमने डिस्चार्ज के टर्म में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो हियर जो हमारा dp बाई ds जो आया वो कितना आ गया, माइनस रो बाई a इंटू डेल q बाई डेल टी। तो दिस इज द आवर प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। अब क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, दिया हुआ है क्या, तो हमारा डेंसिटी जो है वो तो मालूम है, रो जो अगर वाटर है तो 1000, और यहाँ पे आपका यहाँ अगर देखा जाए तो कंसीडर इन 20 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप। सो पाइप का जो है वो डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सो वहां से आप एरिया निकाल लो, और चेंज इन डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, तो Q1 जो है वाटर डिस्चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम 25 टू 100 लीटर, मतलब इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज करिए, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड में। सो यहाँ से आपका निकल जाएगा, निकाल के बताइए कितना आ रहा है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे Q1 की वैल्यू लिखूं तो Q1 कितनी हो जाएगी, What is the value of Q1? 25 लीटर पर सेकेंड। सो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो कितना हो गया 0.025 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और Q2 जो है वो कितना हो गया है 25 टू 100 लीटर्स पर सेकेंड। 1 लीटर जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, सो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस वैल्यू इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टाइम हमारा दिया हुआ है कितना है 3 सेकेंड है, तो यहाँ से डेल क्यू बाई डेल टी निकाल लीजिए पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल क्यू बाई डेल टी, यहाँ से देखो कितना आ रहा है डेल क्यू बाई डेल टी, तो इट विल बी 0.1 माइनस 0.025 डिवाइडेड बाई 3। टेल मी द वैल्यू, कितना वैल्यू आ रहा है 0.1 माइनस 0.025, 0.1 माइनस 0.025 डिवाइडेड बाई 3, so it is coming 0.025, it is coming 0.025. So del P by del S, or area can be computed as, so what will be the value of area, so 20 centimeter diameter pipe है, so area क्या हो जाएगा pi by 4 into 0.2 का whole square, so what will be the value, pi into 0.2 square divided by 4, तो ये वाला वैल्यू जो हमारा आ गया है वो कितना आ गया है 0.031, so this value is 0.031 meter square. So we can compute the del P by del S, that is the pressure gradient, del P by del S is equal to minus rho by A। कितना हमने डेराइव किया है अभी प्रेशर ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन, कितना निकाला है प्रेशर ग्रेडियंट, डेल P by del S जो है हमारा कितना है, तो डेल P by del S माइनस रो बाई ए डेल Q by del T। हाँ, तो माइनस रो बाई ए, सो माइनस रो माइनस 1000, density of water is 1000, so minus 1000 divided by area, area is 0.031 into del Q by del T, so 0.025। देखो कितना वैल्यू आ रहा है 1000 into 0.025 divided by 0.031, so it is minus 806, minus 806। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन कुछ गलत हुआ है क्या, देखिए 25 to 100 liter per second in 3 seconds. What is the pressure gradient that sustain a flow? देखिए क्या हो रहा है, Q की वैल्यू 25 लीटर्स है तो 10 to the power minus 3, so it will be 0.025 and 100 into 10 to the power minus 3, 0.025 और 100 divided by 1000, तो ये कितना आ रहा है 0.1, so 0.1 माइनस डेल क्यू बाई डेल टी जो हो गया आपका कितना हो गया 0.1, 0.1 माइनस 0.025 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस वैल्यू इज 0.025। एरिया जो है वो कितना है आपका
in a 20 centimeter horizontal pipe water discharge increases from कितना। तो सही है ये तो। एक बार डेरिवेशन देखो, सही है ना? डेरिवेशन में कोई दिक्कत है क्या? हमने डेल डी एस से डिवाइड कर दिया, डेल पी बाई डेल एस प्लस रो बाई ए इंटू डेल क्यू बाई डेल टी। सो यहाँ माइनस रो बाई ए, कंसिडर इतना वाटर डिस्चार्ज। हाँ, सो द प्रेशर ग्रेडियंट दैट कैन सस्टेन द फ्लो। सो क्लोजेस्ट आंसर जो है वो वही हम लोग लेंगे। तो हमारा फिर से देखो एक बार, एरिया सही निकाला है हमने, 20 सेंटीमीटर है। सो एरिया कितना आ गया? एरिया चेक करिए, पाई बाई 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कितना है? 0.031 मीटर स्क्वायर। सो डेल पी बाई डेल एस इज माइनस 1000 डिवाइडेड बाई एरिया इज 0.031 इंटू 0.025। so pi into, sorry, 1000 into 0.025 divided by 0.031. So it is coming minus 806.45, minus 806.45 पास्कल पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा क्लोजेस्ट आंसर जो है उसी को लिया जाएगा। सो दैट इज -796 को ही हम लोग यहाँ पे टिक करें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ए जेट ऑफ वाटर flowing vertically has a velocity 30 meter per second and diameter of 60 mm at an elevation of 24 meter. What is its velocity and jet diameter and elevation of 12 meter? State the principle used. This question is asked in civil services examination 1998. बोला जा रहा है कि एक जेट है जो फुलिंग हो रहा है वर्टिकली, हैज ए वेलोसिटी। तो दो पॉइंट फिर से है यहाँ पे। मान लो कि पहला पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो कितना है? 68, और इसका इक्वेशन जो है वो डेटा से जो दिया गया है 22 मीटर। What is the velocity? So हमें velocity निकालना है, and jet diameter that is also we have to find, जहां की elevation जो है वो कितना है हमारा? 12 मीटर। ओके, तो कैसे निकालोगे बताइए? क्या करेंगे बताइए? फिर से लगाइए बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। सो इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और दिस इज द सेकेंड पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2, 1 और 2 पे लगाया तो क्या हो जाएगा? P1 बाई गामा प्लस P1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। यहाँ पे प्रेशर के बारे में बोला नहीं गया है, तो जेट जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर पे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाएगा। तो P1 और P2 सेम हो गया, तो P1 एंड P2, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ से क्या हो गया? ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, तो वी कैन राइट V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1. What is the value of Z1? That is 24. So 24 is equal to V2 square by 2G plus the value is 12 meter. 12 meter. So 12. So here V1 is given. V1 is how much? 30 meter square per second. So it will be 30 square divided by 2 into 9.81. So 19.62 plus 24 minus 12. That is equal to V2 square divided by 2G. Tell me the value of V2. V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 30 स्क्वायर, सब लोग कैलकुलेट करो, 19.62 प्लस 12, 57.87 इंटू 19.62। चेक करिए, वेलोसिटी जो आ रहा है 33.69 मीटर पर सेकेंड। देखो सब लोग चेक करिए, इतना ही आ रहा है। यस। हाँ, तो जो हमारा पहला एक तो वेलोसिटी निकल गया। आप डायमीटर कैसे निकालेंगे? बोलो। बोला जा रहा था कि हमें निकालना है व्हाट इज द इट्स वेलोसिटी एंड जेट डायमीटर।
जेट डायमीटर भी निकालना है एट एन एलिवेशन ऑफ 12 मीटर। डायमीटर कैसे निकालेंगे? अरे D1 मालूम है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए, कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, according to continuity equation we can write A1 V1 is equal to A2 V2. A1 is pi by 4 into diameter is given. What is the value of diameter? That is 60 mm. So 60 mm तो 60 स्क्वायर, बिकॉज डायमीटर यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज जो दूसरा डायमीटर है वो भी 60 में आ जाएगा। V1 और V2 का यूनिट जो सेम रखने के बाद वो सेम ही आएगा। तो यहाँ से डायमीटर बताइए कितना आ रहा है? टेल मी द वैल्यू ऑफ डायमीटर कितना आ रहा है? पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 एंड D1 इज गिवन, सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ D2। कितना आ रहा है वैल्यू? डायमीटर बताइए कितना आ रहा है? अरे कंटिन्यूटी इक्वेशन जब लगाएंगे 1 और 2 पे, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना है? फर्स्ट का डायमीटर जो है वो 60 mm है, तो 60 स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू 30 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू D2 स्क्वायर इंटू V2 इज 33.69। सो यहाँ से पाई बाई 4 कैंसिल, सो यहाँ से D2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 33.69 इंटू 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2 स्क्वायर? सो D2 स्क्वायर इज 60 स्क्वायर इंटू 30 डिवाइडेड बाई 33.69। So this value is coming 3205. So if I compute the square root, so diameter is coming D2 अगर यहाँ से निकाला जाए तो D2 कितना आ रहा है? 56.61। चेक करो, D2 is diameter is coming 56.61 mm। देखो तो सबका यही आ रहा है। यस यहाँ से दोनों चीज निकल गया। अब बोला जा रहा है कि स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड, कौन से प्रिंसिपल से यूज निकाला गया है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जेट जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में लिया गया है। जेट जो है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ले गया, तब तो प्रेशर को हमने इक्वेट किया है ना, दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दिया। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इसको लेकर और ये चीज निकाला गया है। क्या क्या? तो वेलोसिटी और जेट डायमीटर की वैल्यू को निकाला गया है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2011 में पूछा हुआ है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है वाटर फ्लोज इन ए पाइप एज शोन इन द फिगर। दिस इज द पाइप दैट इज गिवन। ये हमारा पाइप है जो दिया हुआ है। बोल रहा है कि द वेलोसिटी एट पॉइंट 1, इस पॉइंट को 1 लिया गया है, दिस इज द पॉइंट 1, और इस पॉइंट 1 पे जो हमारा डायमीटर ऑफ द पाइप जो है वो 50 mm है। ओके, और जो प्रेशर जो है वो 1.2 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा फोर्स प्रेशर जो है वो 1.2 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरफ जो पॉइंट 2 है वहां पे जो डायमीटर जो है वो 20 mm डायमीटर है, और प्रेशर जो है वो क्या है? जो है हमारा प्रेशर जो है वो 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे जो अगर प्रेशर जो है वो आपका 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, तो बोला जा रहा है कि आप वेदर द फ्लो इज फ्रॉम 1 to 2 और अदर वे। बोला जा रहा है कि फ्लो किस तरह होगा, इधर से जाके इधर होगा या 2 to 1 होगा, या किस तरह होगा फ्लो? तो कैसे चेक करेंगे? हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी। हाँ, तो नहीं, फ्लो जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी या हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी या हायर हेड टू लोअर हेड। आप क्या करते हो, अगर घर पे भी अगर टंकी अगर आपने किया तो क्या हुआ? जितना हाइट पे होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है, उसमें डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, फ्लो मैक्सिमम होगा, एलिवेशन जितना होगा। तो आप दोनों का निकालो, 1 पे भी टोटल हेड निकाल लीजिए और 2 पे भी टोटल हेड निकालिए, और जिसका ज्यादा होगा, मान लो कि अगर 2 पे का टोटल हेड ज्यादा है 1 से, तो हमेशा जो फ्लो होगा वो 2 to 1 होगा। अगर 1 का टोटल हेड ज्यादा है 2 से, तो फ्लो फ्रॉम 1 to 2 होगा। ओके, तो निकालो दोनों टोटल हेड। व्हाट इज द टोटल हेड? टोटल हेड क्या हो जाएगा?
अरे टोटल हेड जो वही तो है P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z। टोटल हेड अगर सेक्शन 1 की पे बात की जाए तो व्हाट विल बी द टोटल हेड, दैट इज P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 एंड एट पॉइंट 2 सो इट विल बी P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। तो निकालिए। वेलोसिटी दिया हुआ है 1 पे, तो 2 पे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? अभी किया है अभी। हाँ बट नॉलेज से कैसे? कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ ना। 1 पे डायमीटर दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मान लिया कि मैं दिस इज द डेटम, इसी को हमने डेटम मान लिया है, दिस इज द डेटम। तो डेटम यहाँ की जो z की वैल्यू है वो कितनी हो गई 0, और दूसरा जो होगा वो कितना हो गया +2। ऊपर अगर है तो पॉजिटिव मिलेंगे, इसके नीचे अगर रहता तो माइनस में लेते। तो जो 0.2 का डेटम हेड कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर हो गया। अगर आप इसी को 2 को डेटम मानते तो 1 पे जो हो जाता वो कितना वैल्यू हो जाता z की वैल्यू -2 मीटर। ओके, सो दिस इज अप टू यू कि आप कौन सा डेटम ले रहे हैं। आप कोई अगर चाहेगा कि इसको ले ले डेटम तो नो प्रॉब्लम, सेम चीज आएगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको डेटम मान लिया है कि 1 जो है हमारा डेटम है, तो डेटम हेड जो हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा +2 मीटर, बिकॉज इट इज अबव द 2 मीटर, सो दैट इज +2। अगर 0.2 is just below the 2 meters, so we can take the datum head is -2 meter. Okay, so firstly we have to find the velocity at 0.2. So what will be the velocity? So according to continuity equation, if I write the continuity equation, so write the continuity equation. So according to continuity equation, we can write A1 V1 is equal to A2 V2. So pi by 4 into d1 square into v1 is equal to pi by 4 into d2 square into v2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी एट 1 is 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ का डायमीटर कितना है 50 mm। सो वी कैन राइट pi by 4 कैंसिल, सो 50 स्क्वायर इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू यहाँ का डायमीटर कितना है 20 mm, सो 20 का स्क्वायर 20 स्क्वायर इंटू v2। यहाँ से v2 बताओ कितना आ रहा है? 6.25 मीटर पर सेकेंड। 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर, so that is equal to 6.25 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी एट 0.2 पे जो हो गया वो कितना है 6.25 मीटर पर सेकंड। अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या लगाना है हमें? तो 0.1 पे सबसे पहले टोटल हेड निकाल लो। सो एट पॉइंट वन टोटल हेड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। What will be the value of P1? So P1 is given 1.2 kg फोर्स, kg फोर्स है तो इसको चेंज कर दो, तो जो आपका है 9.81 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 1.2, सो 1.2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4 इंटू गामा की वैल्यू लिख दो, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से फिर हो जाएगा रो इंटू जी, तो 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। V1 कितना है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62, और Z1 की वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ पे 0 आ गया। देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है 1.2 डिवाइडेड बाई 9.81 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 1000 इंटू 10 टू द पावर -4 12 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62। तो ये वाला वैल्यू जो आ गया है वो 12.05 मीटर। और लोग चेक करो, देखो कितना आ रहा है, ठीक है, चेक करके बताइए। दूसरा अगर आप 2 पे निकाला जाए तो एट पॉइंट टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल हेड? तो टोटल हेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस यहाँ पे डेटम हेड भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है डेटम जो है यहाँ पे डेटम ले लिया है, तो यहाँ Z1 तो 0 हो गया था, लेकिन Z2 जो है वो 2 मीटर अबव है, तो यहाँ पे हो गया। तो क्या हो गया? प्रेशर जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 kg फोर्स, तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा 1 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4
मीटर में स्क्वायर में अगर चेंज किया तो इंटू गामा, गामा की वैल्यू रो इंटू जी, सो 1000 इंटू 9.81 प्लस V1 जो है आपका कितना, V2 हमने निकाला है, तो V2 जो आ गया है वो 6.25, तो 6.25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62, 2 इंटू 9.81 दैट इज 19.62 प्लस 2 मीटर। तो यहां से देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई, डायरेक्टली ये वाला वैल्यू तो 10 हो गया, 10 प्लस 6.25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62 प्लस 2, so this value is 13.99 मीटर। अगर मैं सही हूं तो देखिए, चेक कर लीजिए आप लोग, देख लो एक बार, सही है कैलकुलेशन। तो टोटल हेड 13.990995 13.99 आ रहा है ना? यस सर। हाँ, टोटल हेड एट 2 पे जो है वो ज्यादा है टोटल हेड एट 1 पे, मतलब कि हायर जो एनर्जी है वो कहाँ पे है, ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है, 2 पे है। तो मतलब फ्लो जो होगा हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी या हायर हेड टू लोअर हेड। तो फ्लो किस तरह होगा, 2 to 1 या 1 to 2? 2 to 1. 2 to 1. So the flow is from 2 to 1. So we can write here flow is from 2 to 1. Flow is from 2 to 1. बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो फिर से बताऊंगा। नो सर। सबको समझ में आ गया कि इस तरह का अगर चेक करने के लिए रहेगा कि फ्लो किस डायरेक्शन में उड़ा है, तो दोनों तरफ अपने दोनों जगह उस दोनों पॉइंट पे आप क्या निकाल लो, टोटल हेड की वैल्यू निकाल लो। किसी एक पॉइंट को डेटम मान लो, किसी एक पॉइंट को डेटम मान लो, तो उसके अगर अबव पॉइंट है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर बिलो है तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। कोई दिक्कत यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? फिर से बता दूंगा। पॉइंट 1 पे 1 मीटर है तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी। सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन, दो चीज हमें पूरा याद रखना है फ्लूइड डायनामिक्स में, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज होगा और दूसरा बर्नौलिस इक्वेशन का यूज होगा। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन जो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस आ गया है ना कि कैसे आप टैकल करना है बर्नौलिस इक्वेशन को। हमें जस्ट कुछ भी नहीं करना है, दो पॉइंट पे हमें बर्नौलिस इक्वेशन लगाना है और सारे अलग अलग प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड को हमें अलग अलग निकाल लेना है और फिर अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब तक कि हेड लॉस नहीं दिया हुआ है, हेड लॉस यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया तो हमने हेड लॉस को नहीं कंसीडर किया है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A pipeline carrying oil of specific gravity 0.8 changes in diameter from 300 mm at position A to 500 diameter at position B, which is 5 meter at higher level. If the pressure at A is 19.62 and at B is 14.91 Newton per centimeter square and the discharge is 0.2 meter cube per second, determine the loss of head and the direction of flow. Once again we have in this question they have asked us the direction of flow. We have to decide whether it is from A to B or B to A. ठीक है, और determine the loss of head. Loss of head आपको निकालना है, निकालिए कैसे होगा। क्या करेंगे बोलिए। आपको क्या करना है, फिर से वही है आपका, सबसे पहले तो डेंसिटी निकाल लो। डेंसिटी कितना हो जाएगा, एक पाइपलाइन का ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो 0.8 इंटू 1000 कितना हो गया, 800 kg पर मीटर क्यूब। और एक पोजीशन है, पोजीशन ए पे जो है उसका डायमीटर कितना है, दो पॉइंट लिख लो, ए और बी, ए और बी। पोजीशन ए पे जो है डायमीटर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर की वैल्यू है वो 300 mm, तो हेयर इज 300 mm। बी पे डायमीटर कितना है 500 mm। उसी तरह क्या क्या और दिया हुआ है लिख लीजिए उसको। और जो अगर डेटम है, अगर जेड की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू मान लीजिए कि ए को डेटम हमने मान लिया तो जेड की वैल्यू कितनी 0, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है at position A to 500 diameter at position B which is 5 meter at a higher level। जो B है वो A से 5 मीटर ऊपर है। ठीक है, और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है
अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ए पे जो है वो कितना है, दैट इज 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हेयर इज 14.91 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिस्चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, जो है वो डिस्चार्ज भी दे दी है। अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज की वैल्यू जो है वो 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां से आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप क्या है कि पूछा जा रहा है कि किधर होगा, फिर से पूछा जा रहा है यही चीज आपको। तो एक तो लॉस निकालना है और दूसरा जो है वो क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो बर्नौलीज इक्वेशन जब लगाओगे, ए पे अगर हमने टोटल हेड निकाला तो क्या हो जाएगा बताइए, पी ए बाई गामा प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड। उसी तरह बी पे निकालना है तो पी बी बाई गामा टोटल हेड जो होगा प्लस वी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बी। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है लेकिन डिस्चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो क्या वी ए वी बी निकाल लेंगे, बोलिए। तो लेट Yes, sir. let VA be the velocity, VA be the velocity at point A and VB be the velocity at point B। A और B पे हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी निकाल लिया। तो कैसे निकाला, V इज इक्वल टू Q, हम जानते हैं कि क्या Q इज इक्वल टू A इंटू B। तो यहाँ से VA जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q बाई एरिया एट पॉइंट A। तो डिस्चार्ज इज गिवन 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू डायमीटर, डायमीटर इज 300 mm। So if I convert in meter, so it will be 0.3 square. Tell me the value of velocity at point A. So it will be 4 into 2.83. divided by pi into 0.3 square. So it is coming 2.83 meter per second. 2.83 meter per second. Similarly, the velocity at B can be computed. So velocity at B, that is equal to 0.3 divided by pi by 4 into 0.5 whole square. So what will be the value? 4 into 0.3 divided by pi into 0.5. तो कितना आ रहा है ये, 1.53 मीटर पर सेकेंड। Because sorry, discharge is 0.2 meter cube per second. Discharge is given, that is 0.2. So here 0.2 कितना आ रहा है वैल्यू, 1.02 meter per second. 0.2 into 4 divided by pi into 0.5 square. So it is 1.02 meter per second. अब सबसे पहले तो आप हेड निकाल लो, टोटल हेड एट ए, टोटल हेड एट ए दैट इज इक्वल टू पी ए बाई गामा प्लस पी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ए। हमने मान लिया कि एज्यूम द डेटम इज एट पॉइंट ए, यहां पे लिख लो कि एज्यूम डेटम लाइन इज एट ए। अब डेटम ही वहां पे है तो जेड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब पी ए दिया हुआ है आपका, पी ए कितना है 19.60। यूनिट का ध्यान रहे, बार बार मैं बोलता हूं कि यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना। तो 19.62 डिवाइडेड बाई 10 to the power minus 4 बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इंटू गामा, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। रो की वैल्यू को हमने निकाल लिया है कितना, गामा का वैल्यू दिया हुआ है सर, अरे रो दिया हुआ है ना, 800 निकाल लिया। तो 800 इंटू 9.81 प्लस वी ए की वैल्यू कितना है, वी ए जो है वो 2.83। सो 2.83 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62, ये कितना आ रहा है वैल्यू बताइए, 19.62 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 9.81 प्लस 2.83 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62। बिकॉज जेड ए की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे अगर लिखा जाए तो जेड ए दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 25.41 मीटर। उसी तरह टोटल हेड एट बी अगर निकाला जाए, टोटल हेड एट बी, तो दैट इज इक्वल टू पी बी बाई गामा प्लस वी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बी।
प्रेशर जो दिया हुआ है बी पे कितना है 14.91, सो 14.91 divided by 10 to the power minus 4 into 800 into 9.81 प्लस VB की वैल्यू जो है वो 1.02 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.62 प्लस सम हेड कितना है, डेटम हेड बी का कितना होगा 5. हाँ 5 मीटर, जो बी है जो वो 5 मीटर अबव है, तो ZB इज इक्वल टू 5. तो टेल मी दिस वैल्यू कितना आ गया 14.91 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 9.81. सब लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, अगर आप यहां नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर गड़बड़ करके आओगे आप कैलकुलेशन. 19.62 प्लस 5, सो दिस इज कमिंग 24.05. अगर बी पे अगर टोटल हेड की बात की जाए, टोटल हेड HB दैट इज 24.05 मीटर. तो यहाँ से क्या हो गया HA दैट इज, यहाँ पे हमने टोटल हेड को HA लिखा है. टोटल हेड जो है एट ए पे हम इसको हमने अगर डिनोट किया, दिस इज HA और दिस इज HB टोटल हेड. तो यहाँ से क्या है HA जो है वो क्या है ग्रेटर देन HB है, मतलब फ्लो किधर से किधर होगा बोलिए, फ्लो इज फ्रॉम A to B. A से B, A to B. A to B, A to B. हाँ A to B. और हेड लॉस निकालना है तो हेड लॉस निकाल लो. हेड लॉस आप निकालोगे तो हेड लॉस कितना हो जाएगा, तो हेड लॉस दैट इज इक्वल टू HA माइनस टोटल हेड एट A माइनस टोटल हेड एट B. तो हेड लॉस कितना हो जाएगा, कितना का हेड लॉस है, तो 25.41 माइनस 24.05. हम जो इक्वेशन लिखते थे क्या लिखते थे इसी तरह ना, PA बाई गामा प्लस BA स्क्वायर बाई 2G प्लस ZA दैट इज इक्वल टू PB बाई गामा प्लस ZB प्लस BB स्क्वायर बाई 2G प्लस उधर ही हेड लॉस लगाया था कि नहीं लगाया था पाइप फ्लो में, उस साइड ही. तो दैट डिपेंड्स कि किधर से फ्लो हो रहा है. तो A to B हो रहा है तब इधर है, B to A होता है तो इस साइड हो जाता फिर. तो यहाँ पे कितना हो गया 25.41 माइनस 25.01, 25.41 माइनस 24.05. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1.36 मीटर का हेड डिफरेंस है, हेड लॉस. बोलिए इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? आसानी से हो गया ना, बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आ रहा है ना सबको, इतना क्वेश्चन करा दिया गया है. चलो अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी AKU में पूछा हुआ है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज गेज प्रेशर विद ए मीन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट of the water at cross section which is 5 meter above the datum line. 7 मार्क्स का क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ यूनिवर्सिटी में. पहला क्वेश्चन आया था कि डिराइव द बर्नौलीज इक्वेशन. तो डिराइव कर लीजिएगा ना बर्नौलीज इक्वेशन को. नहीं बोल रहे, डिराइव हो जाएगा ना, कल के क्लास में हमने डेरिवेशन किया है तो डिराइव हो जाएगा. दूसरा पार्ट यही पूछा था कि इसलिए उसको मैंने नहीं लिया है, दैट पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द यस्टरडे क्लास. तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर ए प्रेशर. तो मान लो कि ये प्रेशर एक पॉइंट है जिसका क्या है 5 सेंटीमीटर डायमीटर और प्रेशर यहाँ पे इतना दिया हुआ है विद ए मीन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर एट क्रॉस सेक्शन विच इज 5 मीटर अबव. मान लो 2 पॉइंट है, मान लो कि ये दिस इज पॉइंट 1 है, एक पॉइंट को हमने मान लिया कि पॉइंट 1 है, वहां पे कितना है पाइप की डायमीटर जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और फिर जो प्रेशर है तो प्रेशर कितना दिया हुआ है दैट इज गेज प्रेशर 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. अब दूसरा पॉइंट है पॉइंट 2 की अगर बात की जाए तो पॉइंट 2 जो है वो कितनी है 5 मीटर अबव है, 5 मीटर अबव है दूसरे पॉइंट से, और वहां पे हमें निकालना है टोटल हेड. इसी पॉइंट पे हमें टोटल हेड निकालना है. क्या करेंगे बताइए. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले पॉइंट 2 पे वेलोसिटी निकाल लें और प्रेशर निकाल लें. डेटम हेड मालूम नहीं है, डेटम हेड हमने मान लिया है कि पॉइंट A को हमने डेटम लाइन मान लिया है, तो पॉइंट B का डेटम हेड कितना हो जाएगा पॉइंट 2 का 5 मीटर. अब सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालो. कैसे निकालोगे वेलोसिटी बोलो? अरे डायमीटर तो पाइप कंटिन्यूटी इक्वेशन, डायमीटर तो सेम है तो वेलोसिटी भी कितना ही हो जाएगा, उतना ही तो होगा. तो डायमीटर तो चेंज नहीं कर रहा इसलिए सर इससे बराबर ही है जी. डायमीटर तो फिक्स ही है ना सर पूरे पाइप का. हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि डायमीटर सेम है तो वेलोसिटी भी तो सेम हो गया सर, सेम हो जाएगा. आप लगा दो कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो पाई बाई 4 दोनों तरफ का तो आपका एरिया कैंसिल हो गया ना.
तो V2 भी कितनी हो गई, अरे V की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी हो गई, 2 मीटर पर 2 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, यस सर। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ 1 2 पे, तो अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, क्या हो जाएगा, P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे हेड लॉस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो लॉस नहीं लिया गया। अगर लॉस बोलेगा कि लेना है तो लेंगे, फिर दैट इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। P1 कितना है, P1 जो है वो 29.43, सो 29.43 divided by 10 to the power minus 4 into gamma is 1000 into 9.81। अब V1 V2 तो सेम ही है ना सर। अरे V1 ये भी वाला सेम है तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2G 2G। हाँ प्लस 0 दैट इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर। एज्यूम डेटम लाइन, ये लिखना जरूरी है, एज्यूम डेटम लाइन इज एट पॉइंट 1। मान लीजिए कि जो इवेल्युएटर है, जो इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो डेटम लाइन 2 को लेकर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो वो प्लस 5 देख के कुछ अगर होगा तो यहाँ पे आपने लिख दिया है कि हमने डेटम लाइन 1 पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालो P2 बाई गामा की P2 निकालो, यहाँ से कितना हो गया, दिस वैल्यू इज 29.43 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81। ये कितना आया, 30 आ रहा सर। P2 बाई गामा -2 आ रहा है। 30 आ रहा है, ये वाला वैल्यू 30 आ रहा है। सर -10 टू पावर। कैलकुलेशन सही करो, कैलकुलेशन बहुत गलत होता है तुम्हारा। P2 इज इक्वल टू 25 इंटू 9.81 इंटू 1000, कितना आ रहा है, 25 इंटू 9.81 इंटू 1000। ये वाला वैल्यू इसका जो हो गया 245,250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर में हमने सब चीज निकाला है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो निकाल दो टोटल एनर्जी या टोटल हेड एट पॉइंट 2 कितना हो जाएगा, P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। P2 कितना है, अभी हमने निकाला है, कितना 245,250। तो 245,250 डिवाइडेड बाई गामा इज 19.81 इंटू 1000 प्लस वेलोसिटी तो सेम रहेगी, कितना है, सो दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज 2 मीटर, सो 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62 प्लस 5। देखो कितना आ रहा है वैल्यू, टोटल एनर्जी या टोटल हेड 245,250 डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62 प्लस 5, 30.204 मीटर टोटल हेड या टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 पे जो है। सबको समझ में आया। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू, फिर ये 2018 में पूछा था, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट इनलेट एंड आउटलेट रेस्पेक्टिवली। एक वाटर का पाइप का फ्लो हो रहा है जिसमें इनलेट पे डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है और आउटलेट पे जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप इज 35 लीटर पर सेकेंड। द इनलेट इज 6 मीटर above the datum and outlet is 4 meter above the datum. If the pressure at inlet is 39.24 Newton per centimeter square, find the intensity of pressure at outlet. आसान है, फिर भी ये भी क्वेश्चन तो अब हो जाएगा ना, कुछ टफ है क्या। अब हमने लिख लिया है दिस इज इनलेट और ये हमारा आउटलेट है। इनलेट पे हमारा क्या है, डायमीटर जो है, अगर डाया की बात की जाए तो डाया इनलेट पे जो है वो 20 सेंटीमीटर, आउटलेट पे जो है वो 10 सेंटीमीटर।
उसी तरह फिर अगर फ्लो हमारा जो डिस्चार्ज तो सेम होगा 35 लीटर पर सेकेंड। इनलेट जो है वो जेड की वैल्यू, अगर डेटम हेड की बात की जाए तो इनलेट कितना है, डेटम से है 6 मीटर अबव। एक डेटम हमने मान लिया है, उससे 6 मीटर अबव जो है वो इनलेट है, और जो आउटलेट जो है वो कितना मीटर अबव है, 4 मीटर अबव। इफ द प्रेशर की अगर बात की जाए तो प्रेशर जो इनलेट पे है वो कितना है, 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो प्रेशर एट बी, इस आउटलेट पे हमें मांगा जा रहा है, पी आउटलेट, यही तो निकालना है। सबसे पहले तो आप क्या करो, क्यू दिया हुआ है तो वहां से आप वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे निकालो। क्यू कितना है आपका, 35 लीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, 35 लीटर पर सेकेंड। तो 35 इंटू 10 टू द पावर -3, तो कितना हो गया, 0.035 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां से आप इनलेट पे निकाल लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट इनलेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई एरिया एट द इनलेट। क्यू कितना है, 0.035 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू डायमीटर। डायमीटर इनलेट का कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2। बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा है, 1.11 मीटर पर सेकेंड। 1.11 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह वेलोसिटी आउटलेट पे निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एरिया एट द आउटलेट, 0.035 डिवाइडेड बाई π/4, और डायमीटर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया, 4.456 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बर्नौलीज इक्वेशन लगा दीजिए, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट इनलेट एंड आउटलेट। क्या हो जाएगा, प्रेशर एट इनलेट डिवाइडेड बाई गामा प्लस वेलोसिटी एट इनलेट divided by 2g plus z inlet, that is equal to pressure outlet divided by gamma plus velocity of outlet square divided by 2g plus z outlet। जिस तरह क्वेश्चन का भाषा हो उसी तरह आंसर हमें देना है। समझ में आ रहा है ना, जिस तरह वो बोले एग्जामिनर, जिस तरह आपको, जिस मोल्ड में आपको जिस तरह वो ढालने की कोशिश करे आपको उसी तरह ढाल लेना है। यहाँ नहीं कि अब हम यहाँ पे 1 2 और ले लिए, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन हमने पढ़ा है P1/, तो वहां पे हमने सेक्शन 1 2 लिया, इसलिए P1 गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g लिखा है। यहाँ पे इनलेट आउटलेट है तो उसी तरह हमने लगा दिया है। अब इनलेट पे प्रेशर देखो कितना है, द प्रेशर एट इनलेट इज गिवन, दैट इज 39.24 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एट द आउटलेट। जस्ट अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ P आउटलेट। The pressure at inlet is, that is 39.24. So if I convert in meter, Newton per meter square, so 39.24 divided by 10 to the power -4 into 9.81 into 1000. Velocity just we have computed. What is the velocity at inlet? That is 1.1. So 1.11 square divided by 2g means 19.62. And the datum head is a datum head is 6 meter above the datum line. So that is 6 meter. So 6 meter is equal to pressure at outlet divided by gamma plus velocity at outlet computed, that is 4.46. So 4.46 square divided by 19.62, and the datum head at the outlet that is given in the question, so it is 4 meter. So 4 meter. So everything is given, just we have to find the pressure at the outlet. So if I compute this value, so 39.24 into 10 to the power 4 divided by 9.81 into 10 to the power 3 plus 1.11 square divided by 19.62 minus, अगर करूं 4.46 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.62 माइनस सॉरी यहाँ पे हमने शायद चलो तो इधर अगर 6 + 2 कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो +2 सर लेफ्ट साइड आएगा 46.06, 41.04 आ रहा है पी आउटलेट बाई गामा। 41.04 इज इक्वल टू पी आउटलेट डिवाइडेड बाई गामा। चेक करो, चेक करिए। ये सर यही है।
ठीक है ना। तो यहाँ से पी आउटलेट जो निकाल लेंगे, पी आउटलेट जो होगा वो कितना 41.04 इंटू 9.81 इंटू 10⁻3। देखो वैल्यू कितना आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 10⁻4 कर दोगे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 10⁻4 हमने कर दिया तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, 41.04 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 10। So pressure is 40.27. 40.26 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर एट आउटलेट। So this is all about the, हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है बर्नौलीज इक्वेशन का। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। So in the next class I will discuss what is the kinetic energy correction factor and momentum correction factor, and then how do we apply the Bernoulli's equation, and then I will discuss the different how to determine the discharge and velocity by various devices.